صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کے حکم پر اسرائیلی فضائیہ نے غزہ پر حملے شروع کر دیے۔ غزہ سٹی، خان یونس اور دیگر مقامات پر شدید بمباری، بچے سمیت 2 فلسطینی شہید۔ یرغمالی کی غلط باقیات دینے پر اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس، حماس کے خلاف سخت رد عمل کا فیصلہ۔ نتنیاہو نے شدید اور طاقتور حملوں کا حکم دے دیا۔ نتنیاہو کا حماس پر امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ اسرائیلی حملوں پر حماس کا شدید رد عمل، آج ایک اور یرغمالی کے واقعات اسرائیل کے حوالے کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل جنگ دوبارہ چھیڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اسرائیل نے صبح حوالے کی گئی لاش نامعلوم قرار دے کر واپس بھجوا دی تھی۔ صبح سویرے غزہ اور مغربی کنارے میں صہیونی فوج کے حملے، 5 فلسطینی شہید اور کئی زخمی، بعض کی حالت نازک۔ غزہ سٹی میں عارضی قبر سے 50 سے زائد لاشیں نکال لی گئیں۔ غزہ میں 2.5 لاکھ ٹن سے زائد کچرے کے ڈھیر، سنگین ماحولیاتی اور صحت کے بحران کی وارننگ، وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ۔ Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather, climate change, and for no rhyme or reason, no fault of ours, our emission is less than a fraction of 1%. And yet in 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods, and storms. پاکستان موسمی تبدیلی سے شدید متاثر، 2022 میں بدترین سیلاب کا سامنا کیا۔ سیلابی صورتحال سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگوں کے مکانات کو نقصان پہنچا اور قیمتی جانوں کا زیاں ہوا۔ موسمی تبدیلی سے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے عالمی برادری اپنا حصہ ڈالے۔ وزیراعظم کا سعودی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی کانفرنس کے تحت گول میز مباحثے میں اظہار خیال، کہا کہ مسلسل قرضوں سے ملکی معیشت کمزور ہوتی ہے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن سے واضح طور پر کرپشن کم ہوئی، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان مصنوعی ذہانت سمیت جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات، مشترکہ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ پیش رفت 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری اور بھائی چارے کی مضبوطی کی علامت ہے۔ فریم ورک دونوں ملکوں کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم ہے۔ توانائی، صنعت، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، زراعت اور غذائی تحفظ سمیت اسٹریٹجک منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ پاک افغان مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار، افغان طالبان کا وفد مطالبات کو تسلیم کرنے سے گریزاں۔ پاک افغان مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم، میزبان ممالک بھی پاکستان کے موقف کو معقول قرار دے رہے ہیں۔ افغان وفد کے کئی ارکان خود بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نکات درست ہیں۔ افغان وفد نے غیر تعاون پر مبنی اور اشتعال انگیز رویہ اختیار کیا۔ پاکستان کا افغان سرزمین سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف واضح اور قابل تصدیق اقدامات کا مطالبہ بار بار کابل سے ہدایات لیتا رہا۔ تینوں بار افغان وفد نے کابل سے فون کال کے بعد حتمی دستخط سے انکار کیا۔ اگر افغان سرزمین سے حملے جاری رہے تو پاکستان ہر ممکن اقدام کرے گا، پاکستانی وفد نے واضح کر دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ، اہم عرب ممالک کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال۔ مصر، اردن اور سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کے اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر اہم بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مسلم ممالک کے مابین عسکری اتحاد اور یکجہتی کا مضبوط ثبوت ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات، مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کر دیے۔ تحریک عدم اعتماد پر صرف متبادل قائد ایوان کے نام کی جگہ خالی چھوڑی گئی۔ نئے قائد ایوان کا نام فائنل ہوتے ہی تحریک عدم اعتماد دائر کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے تاحال کسی نام پر متفق نہ ہو سکی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ایوان صدر پہنچ گئے۔ کشمیر کے لیے نئے وزیر اعظم کے لیے 3 ناموں میں سے ایک پر اتفاق ہوگا۔
किसी सूरत मुस्ताफ़ी नहीं होऊंगा, तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली ने चौधरी अनवर हक का पैगाम पहुंचा दिया। तहरीक अदम एतमाद के इम्कानात मज़ीद वाज़ेह हो गए। T20 सीरीज जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 195 रन के हदफ के जवाब में 139 रन बनाकर आउट। साइम अयूब 47 रन बनाकर नुमाया रहे। साहिबजादा फरहान 24, मोहम्मद नवाज 36 रन बना सके। एक साल बाद वापस आने वाले बाबर आजम 0 पर आउट। कप्तान सलमान आगा 7 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बना पाए। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेल कर 9 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। T20 स्क्वाड से क्यों हटाया, वजह बताएं। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी के सामने शराइत रख दी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार। मोहम्मद रिजवान के अलावा बाकी तमाम खिलाड़ियों ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पीसीबी ने 30 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किए थे। मोहम्मद रिजवान 10 क्रिकेटर्स के साथ बी कैटेगरी में शामिल किए गए थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरान का पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ात के हल में ताउन की पेशकश। ईरानी सदर ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार है। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का बांग्लादेश का सरकारी दौरा। बांग्लादेशी आर्मी चीफ से मुलाकात की। दिफाई ताउन के फ़रोग पर इत्मीनान का इजहार। अस्करी क़यादत की सतह पर बाहमी दौरों के तसलसल पर इत्तिफाक किया। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी का अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की पटिशन दायर करने का ऐलान। कहा कि मेरी मुलाकात के ना होने का ये मतलब नहीं कि मुझे बानी के पैगाम नहीं मिल रहे। जिस दिन इंसाफ होगा बानी जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर सूरत मुलाकात होनी चाहिए। हमारा यह हक है कि वकला बानी से मिलें और फैमिली को भी मुलाकातें करवाएं। सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई ऑर्डर नहीं। जेल रूल में है कि कौन कौन कैदी से मुलाकात कर सकता है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा कि अदालत का हुक्म नहीं है कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात बानी से करवाई जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी समझदार हैं, वो कानूनी नुक्ता नज़र से देखेंगे। शहर कायद में ई चालान का निफाज। इफ्ताह के बाद सिर्फ 6 घंटे में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से जायद के चालान कर दिए। GTV न्यूज़ ने चालान की तफसीलात हासिल कर ली। ओवर स्पीडिंग पर 149, लेन लाइन पर गाड़ी चलाने पर 3 चालान हुए। सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 1535, रेड लाइन क्रॉस करने पर 166, हेलमेट के बगैर चलाने पर 507, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 4, रॉन्ग वे ड्राइविंग करने पर 3 चालान हुए। साइन बोर्ड लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं लगा रहे, बस खाने के चक्कर में। सिग्नल्स हैं नहीं, रोड्स हैं नहीं, तो चालान कैसे वो करेंगे हम। सबसे पहले इनको अपनी चीज़ें सही करनी चाहिए। वीगो गुजरती है, प्राडो गुजरती, कोई नहीं रोकता, सिर्फ ये मोटरसाइकिल वाले इनको नज़र आते हैं। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, खड्डे हैं, वो नज़र नहीं आते, सिर्फ वी चलान नज़र आते हैं इनको बस। तो ये तो पाकिस्तान का तो गवर्नमेंट ऐसी है, गरीबों को मारना और मालदारों को आगे बढ़ा देना। सड़कों की सूरत हाल ठीक है ना, ट्रैफिक सिग्नल, हज़ारों रुपए के चालान क्यों दें। कराची में ई चालान निज़ाम पर शहरी फट पड़े। कहा कि इंतज़ामिया अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं कर रही, बस गरीब आवाम के चालान कर रही है। सिंध हुकूमत सड़कें दुरुस्त करे फिर ई चालान सिस्टम नाफिज करे। कराची की सड़कें कच्चे रास्तों से भी बदतर हैं, लेकिन जुर्माने आलमी मयार के मुकर्रर किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर सिंध सरकार पर बरस पड़े। कहा कि सिंध हुकूमत अवाम को आगाही देने के बजाय महज जुर्मानों से खजाना भरने में मसरूफ है। NCCIA अफसरान के खिलाफ केस में बड़ी पेशरफ्त। गिरफ्तार मुल्जिमान 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत दीगर के खिलाफ FIR मंजर आम पर आ गई। मुकदमा
डकी की अहलिया उरूब जतोई की मदय्यत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक डकी की फैमिली से मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। तफ्तीशी अफसरान NCCIA शोएब रियाज ने डकी को रिलीफ दिलवाने के लिए 60 लाख रुपए लिए। तफ्तीशी अफसर ने फ्रंटमैन के जरिए रकम वसूल की। शोएब रियाज ने दोबारा मुलजिम डकी को जुडिशल करवाने के लिए 30 लाख रुपए की रिश्वत ली। डायरेक्टर जनरल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का तबादला। सैयद खुर्रम अली ने नए डायरेक्टर जनरल NCCIA का चार्ज संभाल लिया। पंजाब में अफगान शहरियों समेत गैर कानूनी मुकीम अफराद को घर या प्रॉपर्टी किराए पर दी तो पर्चा कटेगा। पंजाब हुकूमत ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान करवाने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सरबराही अमन अमान से मुताल्लिक़ अहम फैसले, इजलास में इक़दामात का जायज़ा। तमाम अज़ला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे करवाने पर इत्तिफ़ाक़। बार बार दस्तावेज़ात जमा करवाना, टेस्ट देने का निज़ाम खत्म। सिंध जॉब पोर्टल पर आओ, फॉर्म भरो और रोजगार के लिए अप्लाई करो। जालसाजी से बचने और मेरिट पर नौकरी देने के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल लॉन्च कर दिया। कहा सिस्टम डिजिटाइज किया गया, लोगों के लिए आसान और शफाफ सिस्टम बनाया है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मुकदमा जांबहक 20 साला मोइज़ के भाई की मुद्दत में दर्ज। मकबूल के भाई ने कहा मोइज़ रात दुकान बंद करके मोटरसाइकिल पर घर की तरफ जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू आए और छीना झपटी की। इस दौरान डाकुओं ने गोली चलाई जो मोइज़ की कमर पर लगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की रिहाइशगाह पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सालगिरह की पुरवकार तकरीब। उस्मा बुखारी ने मरियम नवाज़ की सालगिरह का केक काटा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की दराज़ी उम्र, सेहत और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करवाईं। पाकिस्तानी नजाद इंजीनियर रेहान जलील का आलमी कारनामा। रेहान जलील की AI सिक्योरिटी कंपनी को अमेरिकी सॉफ्टवेयर ग्रुप वेम ने $1 अरब 70 करोड़ में खरीद लिया। कंपनी डेटा सिक्योरिटी और AI गवर्नेंस के जदीद हल फराहम करती है। रेहान के बनाए AI गवर्नेंस टूल्स को वेम की प्रोडक्ट लाइन में शामिल किया जाएगा। रेहान जलील VM में सिक्योरिटी और AI के सदर का ओहदा संभालेंगे। और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारती आदाब और जवाबित भूल गए। जापान में इस्तकबाली तकरीब में ट्रंप लहराकर दाएं बाएं चलते रहे। ट्रंप की हरकतों से जापानी वज़ीर आज़म भी हैरत ज़दा। कैमरे ने ट्रंप की आंखों में नींद के खुमार को महफूज कर लिया।